No doubts? Ayush, did you start doing trigonometry? Ashish, sorry. No, sir. Oh. What about you, Ayushi? Are you practicing trigonometry? Yes, sir. Okay. So Ashish, you should also start it because we have almost that we have finished the chapter. Today we will discuss few questions on trigonometric functions and identities and trigonometric equations, so that we will have a more better command on the usage of formulae etc. But you have to actually start practicing on your own, which is very important, because just seeing the question being solved is not going to be helpful that much if you don't do it on your own. Welcome, Arushi. Good evening, sir. Good evening. So we can start today's class. And first of all, I was thinking that if you have any doubt, then we will discuss those doubts. And if you don't have any doubt, then I will discuss few questions on whatever theory we have done till now. So the first question which I want to give it to you on trigonometric equations is actually this one. It is a good question. It says the number of solutions of the equation the equation is this one: sine pi x upon 2 root 3 is equal to x square minus 2 root 3x plus 4 is. Options are given to you: 0, 2, more than 2, and 1. So on the left hand side there is a trigonometric function given, and on the right hand side it is a quadratic expression which is given. Quadratic you have studied in 10th also. So you have to find that how many values of x are there which can satisfy this equation. First you try, then we will discuss it right now. There is a hint that on the right hand side there is a quadratic expression. So you can think of completing the square method.
Kaustubh is saying 0. Good evening, Kaustubh. Ayushi is saying option D. Yeah, option D seems correct to me. Arushi is also saying that the answer is 1. Okay, let us see to solve this question. Mansi, you are a new student, I think. Yes, sir. Okay, so in this class, we are discussing questions on trigonometry. So we have completed till trigonometry, and today's is the question discussion on trigonometry. Have you done trigonometry? Yes, a bit of it. Bit of it you have done. Okay, so try to follow whatever we are going to do today. From next class, we will start new chapter. Then it will be more convenient for you to follow. But still, in this class, you can uh, see what we are doing. And if you have any doubt anywhere, you can just ask. Okay, Mansi? Sir, which chapter will be started in the next class? Mm, I'll have to see, maybe quadratic, I don't know, or complex and quadratic, or maybe linear inequations. I will see which chapter would be better to start in the next class. Okay. So in this question, if you want to solve this equation, so the method is, on the left hand side, we are not doing anything. We are writing it as sine pi x by 2 root 3. On the right hand side, we have x square minus 2 root 3x plus 4, which can be written as x square minus 2 root 3x. And what I'm doing to 4 is that I'm writing it as 3 plus 1, right? Why we are writing it as 3 plus 1? Reason being that this 3 is actually, root 3 square. So I am writing it like this. Now, if you write it like this, what will happen? That the expression from here to here is a square plus b square minus 2ab. This is the formula which is coming. So a minus b whole square plus 1. This is how we can write it, right? Now, if you write it like this, what will happen? That it becomes x minus root 3 whole square plus 1. Now, x minus root 3 whole square, the value, which it is actually, this is a square. So it is always a positive value. It is always greater than equal to 0. It cannot be negative. Minimum it could be 0. So what will happen? X minus root 3 whole square plus 1. If you add 1, that will be greater than equal to 1. 0 plus 1, that is 1. Now point is here that the right hand side is coming out to be greater than equal to 1. So the whole right hand side, if you see this is coming out to be greater than equal to 1. But we know that sine function and cos function, both of these functions have a property that they lie between 1 and minus 1. We know that sine of pi x by 2 root 3, which is the left hand side, is lying between 1 and minus 1. It cannot be less than minus 1, it cannot be greater than 1. But the right hand side is coming out to be greater than equal to 1. So when is it possible that left hand side becomes equal to right hand side? It is only possible that left hand side becomes equal to right hand side if the left hand side attains its maximum value, which is actually 1, and the right hand side attains its minimum value, which is 1. तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और राइट हैंड साइड की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है. तो और कहीं पर ये इक्वल नहीं हो सकते हैं. दिस इज ओनली पॉसिबल इफ साइन पाई एक्स बाई 2 रूट 3 is equal to 1, and that is equal to x minus root 3 whole square plus 1. अगर ऐसा होगा तभी ये हो सकता है. अब अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले यहाँ पर से ये चीज निकल के आती है कि ये x माइनस रूट 3 होल स्क्वायर 0 होना चाहिए. इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू रूट 3 होना चाहिए, तभी x माइनस रूट 3 0 होगा और तभी उसका स्क्वायर भी 0 होगा और जब 1 ऐड करोगे तो 1 मिलेगा.
अब x इज इक्वल टू √3 अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या 1 आ रही है? अगर आ जाती है तो एक सॉल्यूशन तो है, और अगर नहीं आती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो लेट अस सी क्या इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो sin pi x by 2 √3 when you put x is equal to √3 here, √3 will cancel and this will become sin pi by 2, and sin pi by 2 means sin 90 degree which is equal to 1, which is correct. So लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर कब हो रहे हैं? जब x की वैल्यू √3 हो रही है। तो x की वैल्यू जो √3 है, दैट इज the only one value for which you can say that left hand side is equal to right hand side. So option D will be our answer if they are asking number of solution. If they are asking what is the solution, then it will be the value of x, which is √3. Are you getting it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So note this down step by step. Whatever I am speaking and not writing, that also you should write. I hope सबने लिख लिया होगा. Let us come to the next question. तो ये जो है ना एक्सट्रीम वैल्यू का क्वेश्चन था, मतलब कि एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, और किसी एक की एक्सट्रीम वैल्यू दूसरे की एक्सट्रीम वैल्यू से जब मैच करेगी तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं. तो ये एक एक्सट्रीम वैल्यू का क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी दिखता रहता है. बोर्ड में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर तुम्हारे स्कूल में तो नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. Now let us come to another question for general solution. If you have any one of you have any doubt, you can also ask. It is not necessary that the only questions which I will tell you will be discussed here. So the general solution of sin square theta sec theta plus √3 tan theta is equal to 0 is
ट्राई टू फाइंड आउट इट्स जनरल सॉल्यूशन। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्म हो वो सेम ही तरीके से हो सकता है दो अलग फॉर्म की तरह लिखा हुआ हो लेकिन दोनों सही हो। तो इसलिए मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। तुम जिस फॉर्म में लाना चाहो उस फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन बस इसका ध्यान रखना कि अनडिफाइंड नहीं हो। अगर कोई हिंट चाहिए तो पूछ लेना कहीं पर, अगर फंस रहे हो तो। इसमें एक हिंट तो मैं ये दे देता हूँ कि सेक थीटा को 1/cos थीटा ले लेना और टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा ले लेना। उसके बाद एलसीएम ले लेना, देन यू कैन फर्दर प्रोसीड। व्हाट आई एम सेइंग कि सेक थीटा को 1/cos थीटा ले लेना और टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा ले लेना। उसके बाद आगे प्रोसीड करो। Kostov is saying n theta. Okay, let us see. So if we take LCM over here, let us wait for others answers also. So cos थीटा तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करोगे कि एक साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद कैसे करोगे? अब ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद क्या होगा कि या तो साइन थीटा 0 होगा या फिर साइन थीटा प्लस √3 ये 0 होगा। ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, तो और का केस लगेगा। अब साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या होगा? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो ये आंसर तो कॉस का सही था, थीटा विल बी n पाई। हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है? n पाई पे। यू रिमेम्बर द ग्राफ ऑफ साइन थीटा ना? ये इस तरीके से साइन थीटा का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई, तो इन जनरल n पाई पे साइन थीटा 0 हो जाता है। और साइन थीटा प्लस √3 भी 0 हो सकता है। वो कब होगा? वो तब होगा जब साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 हो। लेकिन
साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 जो है वो पॉसिबल है क्या? क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच में होती है। तो अगर तुम साइन थीटा को -√3 ले रहे हो विच इज अ वैल्यू लेस देन -1, जो -√3 वैल्यू होती है -1 से छोटी होती है, तो -1 से छोटी वैल्यू तो साइन ले नहीं सकता है। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ये कभी हो नहीं सकता। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 ही एक पॉसिबिलिटी है, और वो तब होगी जब थीटा n पाई होगा। और एक बार ये चेक कर लो कि n पाई पे यहाँ पर आने वाले कोई फंक्शंस अनडिफाइंड तो नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या होता है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिससे ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो जाती है। बहुत सारे टर्म्स ओरिजिनल इक्वेशन में ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए आंसर जो आया है वो उसके लिए वो अनडिफाइंड हो जाए, लेकिन क्या ऐसा ट्रू है? तो अगर हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई पे, तो साइन थीटा इज 0, सेक थीटा सेक ऑफ n पाई, तो सेक ऑफ n पाई जो होता है वो अनडिफाइंड तो नहीं होता है। सेक ऑफ पाई अगर लोगे तो -1 होगा, 0 लोगे तो +1 होगा, तो या -1 मिलेगा या +1 मिलेगा। तो इट इज ऑल्सो ओके। टैन ऑफ n पाई इज ऑल्सो 0। तो इस तरीके से सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इस इक्वेशन में यूज हुए हैं वो सारे n पाई पे डिफाइन है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यस दिस इज द एक्सेप्टेबल आंसर, and we'll say that therefore theta is equal to n pi, where n belonging to integers, right? So note this down. Let us come to next question now. So the next question for you is, अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो तभी के तभी पूछ लो। इज इट ओके ना? ये नहीं कि आगे बढ़ गए और वो वाला अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ हो। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फाइंड the number of values of x belonging to real number which satisfy the equation cos pi root over x minus 4 into cos pi root x equal to 1. So this is question number 3 for today. Try this question, then we'll discuss this also.
देखो इसमें भी तुम्हें एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा। किसी का आंसर तो आया, आई थिंक कौस्तुभ का आया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है क्या? 1। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है कौस्तुभ, और 1 तुम्हारा आंसर आई थिंक सही होगा। तो इसमें क्या करना है हमें कि इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, आरुषि का भी 1 आ रहा है, ओके। सो क्या है कि ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, कॉस पाई रूट ओवर एक्स माइनस 4, एक तो ये कोई वैल्यू देगा, और कॉस पाई रूट ओवर एक्स ये कोई वैल्यू देगा। और हमें ये पता है कि कॉस जो होता है, दोनों कॉस ही हैं। कॉस जो होता है जैसे साइन के साथ होता है, वैसे कॉस के साथ भी होता है कि कॉस 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 मिल रहा है तो ये कब मिल सकता है? ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल। व्हाट आर दोज 2 केसेस? मतलब 1 और -1 के बीच की तो वैल्यू ये नहीं ले सकता है, न्यूमेरिकली 1 से छोटी वैल्यू ये नहीं रख सकता है, क्योंकि अगर 1 से तुम छोटी वैल्यू किसी को देते हो तो दूसरे को तुम्हें 1 से बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी, सो दैट द मल्टीप्लीकेशन कैन बिकम 1। लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू तो होती ही नहीं है, तो इसीलिए किसी को भी 1 से छोटी वैल्यू न्यूमेरिकली हम नहीं दे सकते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि या तो कॉस पाई रूट ओवर एक्स माइनस 4 ये 1 हो, और कॉस पाई रूट ओवर एक्स ये भी 1 हो, तो दोनों 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कॉस पाई रूट ओवर एक्स माइनस 4 ये -1 हो, और कॉस पाई रूट ओवर एक्स ये भी -1 हो। तो अगर दोनों -1 होंगे तो भी मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलेगा। -1 इंटू -1 इज 1। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जिससे तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो क्या वैल्यू आती है, कितनी वैल्यूज आती हैं ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्या वैल्यू आती है पहले वो देखेंगे, फिर कितनी वैल्यूज आती हैं वो हम आंसर में लिखेंगे। तो या तो दोनों ही 1 हो तब मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, या तो दोनों ही -1 हो तब भी मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू इनमें से किसी को हम दे नहीं सकते, क्योंकि देंगे तो न्यूमेरिकली अगर 1 से छोटा है, न्यूमेरिकली 1 से छोटा का क्या मतलब हुआ कि अगर हम मॉड की बात करें तो मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ग्रेटर। तो न्यूमेरिकली 1 से छोटा हम लोग कॉस को अगर लेते हैं तो दूसरे वाले को न्यूमेरिकली 1 से बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके। Yes, sir. ओके आरुषि। अब cos 1 कब होता है और -1 कब होता है? तो cos का ग्राफ याद होगा, cos का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये 1 है, -1 है, 0 पे 1 होगा, पाई पे -1 होगा। तो बस 0 और पाई नहीं होगा, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos ऑफ थीटा अगर कहीं पे 1 होता है तो इसका मतलब है थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2n पाई। और अगर cos थीटा कहीं पे -1 होता है तो दैट इज थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया। तो इस फैक्ट को हमें यूज करना है। पहले वाले केस में हमारा ये फैक्ट यूज होगा, दूसरे वाले केस में हमारा ये वाला फैक्ट यूज होगा।
So if you see here what happens, मेरे ख्याल से तुम्हें आगे के स्टेप थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगे होंगे अब. Yes, sir. Hold on. ओके गुड अर्शी. तो क्या है कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसमें, तो क्या कहेंगे कि कॉस ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस फोर इंटू पाई, ये 2n पाई है, और रूट ओवर एक्स ये 2m पाई मान लेते हैं. ठीक है, दोनों इंटीजर है, n भी m भी. तो एक तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, इधर भी पाई और पाई कैंसिल हो गया, एंड व्हाट वी गेट ओवर हियर इज यहाँ से x माइनस फोर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर. इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 4 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1. माइनस 4 को उधर ले गए, और यहाँ पर हो गया रूट ओवर x इज इक्वल टू 2m, मतलब x इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. तो कब दोनों बराबर हो सकते हैं, ये और ये किस सिचुएशन में बराबर हो सकते हैं? तो अगर तुम x की वैल्यू 0 लेते हो, 0 नहीं 4 लेते हो, इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर हिट एंड ट्रायल वाला हेल्प लेना पड़ेगा. तो x को अगर तुम 4 लेते हो, तो व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड आउट दैट द वैल्यू हियर इज n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेने पे, हाँ ठीक है, 4 लेने पे n की वैल्यू आ जाएगी 0, और 4 लेने पे यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, माइनस 1 नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट था ना, प्लस माइनस 1 दोनों दिख रहा है हमें, लेकिन हम प्लस 1 लेंगे. तो n की वैल्यू अगर तुम 0 लेते हो और m की वैल्यू अगर 1 लेते हो, तो उस केस में x की वैल्यू 4 हो जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर जाके सोचना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ये है कि दिस यू कैन फाइंड आउट कि x की वैल्यू 4 पे n 0 होगा और m 1 होगा. इज इट ओके? यस. तो अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, x की वैल्यू 4 मिल रही है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 इज वन सॉल्यूशन. इसके अलावा और कोई x की वैल्यू नहीं है जिसपे तुम्हें इंटीजर मिलेगा. क्योंकि तुम देख सकते हो, अगर तुम ये प्रूफ करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें राइट साइड में दिखा दे रहा हूँ कि दोनों x हैं, 4 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 और 4 इंटू एम स्क्वायर, दोनों ही x हैं. तो पहले तुम 4 को कैंसिल अगर करते हो, तो एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर. तो एम स्क्वायर इंटीजर हो और एन मतलब इंटीजर का स्क्वायर हो, और एन स्क्वायर भी इंटीजर का स्क्वायर हो, और उसमें तुम 1 ऐड करके इंटीजर का स्क्वायर तभी पा सकते हो जब एन की वैल्यू 0 हो और एम की वैल्यू 1 हो. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके. तो ये तो हमें मिल गया कि x की वैल्यू इस केस में. जो दूसरा केस है उसमें अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं ऊपर का थोड़ा इरेज करके फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ. ये क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मत सोचना कि हमसे नहीं हो पा रहे हैं. अभी तुम लोग जस्ट 11th में गए हो और अभी तो तुम इस चैप्टर को कर रहे हो, कुछ लोग तो नहीं भी कर रहे हैं, तो समझ जाओ वही काफी है. So what happens here is cos pi root over x minus 4 is equal to minus 1 and cos pi root x is equal to minus 1. तो इससे हम लिख सकते हैं कि pi root over x minus 4 is equal to 2n plus 1 pi, odd multiple of pi, and pi root x is equal to 2m plus 1 pi ले लेते हैं यहाँ पर.
then pi and pi will cancel here also and here also. And in the next step, x minus 4 is equal to 2n plus 1 का square and x is equal to 2m plus 1 का square, जिससे हम ये लिख सकते हैं कि x is equal to 2n plus 1 का square plus 4 and x is equal to 2m plus 1 का square. सर हम m क्यों ले रहे हैं? रूट एक्स पाई इक्वल टू 2m पाई क्यों ले रहे नहीं, -1 है ना ये, हैं? यस सर. तो -1 cos थीटा कब होता है? जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, इसीलिए ले रहे हैं. ओके. ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तभी cos थीटा -1 होता है, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स ग्राफ. दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया बीच में, लेकिन ठीक है, आई होप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोग को. 2n plus 1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2m plus 1 का स्क्वायर. दोनों ही x है. अब ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं होंगे. इसलिए नहीं होंगे, इसको भी मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ. पहले इतना लिख लो क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा. तो इससे तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सेकंड केस से तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. पहले इतना लिख लो, फिर मैं बताता हूँ थोड़ा सा और आगे. केस 1 में इरेज कर दे रहा हूँ. तो ये जो है हमारे पास, ये वाले स्टेप के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि 2m plus 1 का स्क्वायर माइनस 2n plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे अगर, तो 2m माइनस 2n एक ये मिलेगा और 2m प्लस 2n प्लस 2 मिलेगा. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये हो जाएगा m माइनस n, 2 कॉमन, और यहाँ पर m प्लस n प्लस 1, यहाँ पर भी 2 कॉमन, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे. अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है इधर, तो ये डिफरेंस ऑफ इंटीजर, दिस विल आल्सो बी एन इंटीजर, और ये इंटीजर प्लस 1 है, तो दिस इज आल्सो एन इंटीजर. तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 कब आ सकता है? जब या तो दोनों 1 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या दोनों -1 हो, वो भी पॉसिबल नहीं है. हाफ और 2 तो हो नहीं सकता है, फ्रैक्शन में तो है नहीं. तो इसीलिए इसका नो वैल्यू ऑफ m and n, so no x in case 2. तो बस एक ही केस मिला हमें केस 1 में, जब x की वैल्यू मिली थी 4. दैट इज योर आंसर. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1. तो अब हम लोग थोड़े से दूसरे क्वेश्चंस में जाते हैं. इस क्वेश्चन ने काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया होगा, मुझे लग रहा है. सर ये क्वेश्चन आप एक बार शॉर्ट में समझा सकते हैं? हाँ, कौन पूछ रहा था? सर शॉर्ट में एक बार समझा सकते हैं? ओके, मानसी, यू आर आस्किंग. ठीक है, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ तुम्हें. इसमें क्या था कि हमारे पास, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ. हमारे पास ये था कि cos
पाई रूट ओवर एक्स माइनस 4 जो है वो मल्टीप्लाई होता है कॉस पाई रूट ओवर एक्स से और 1 देता है। अब पॉइंट ये है कि दोनों कॉस हैं, जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों ही कॉस हैं। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ रहा है तो या तो दोनों 1 होंगे या फिर दोनों -1 होंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 1 एंड -1। तो 1 से छोटी हम वैल्यू ले नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले को फिर 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो या तो दोनों को 1 ले लें या दोनों को -1 ले लें। जब दोनों को 1 लेंगे तो उस सिचुएशन में जो x की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। जैसे तुम इसमें पुट करोगे तो cos 0 पाई हो जाएगा इंटू cos 2 पाई हो जाएगा। cos 0 पाई भी 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, सो दिस विल बी 1। और अगर तुम -1 ले लेते हो तो x की वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो हमने अभी देखा। तो ये एक्चुअली इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन तुम समझ सकती हो। यस, समझ आ गया। Let us come to the next question now. That involves trigonometric functions as well as trigonometric equations. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन खतरनाक उतना नहीं है। Find the general solution of the equation sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to cos x minus 3 cos 2x plus cos 3x. Try this. हिंट ये है कि इसमें साइन सी प्लस साइन डी की और कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगेगी। पहले कैसे लगेगी वो तुम्हें सोचना है। एक तो इसकी आइडेंटिटी लगेगी, इसको चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो, मतलब साइन एक्स और प्लस साइन 3x इसको एक साथ कर लो और -3 sin 2x को बाद में लिख दो। उसी तरीके से यहाँ cos x और cos 3x है और -3 cos 2x को बाद में लिख दो। अब sin x प्लस साइन 3x पे इसकी आइडेंटिटी लगाओ sin c प्लस साइन डी की, और cos x प्लस cos 3x में cos c प्लस cos d की।
साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी याद है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी की 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. You need to remember all those identities. Some response have come. Arushi, sine n pi by 2 plus pi by 8. Okay. Let us see. So here we have applied sine c plus sine d, and what we get here is 2 sine c plus d by 2 into cos c minus d by 2 minus 3 sine 2x. वैसे ही यहाँ पर भी cos c plus cos d अप्लाई करेंगे तो 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 minus 3 cos 2x. नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2 साइन 2x, और ये cos माइनस एक्स हो जाएगा. तो cos माइनस एक्स कैन बी रिटन एज cos x, क्योंकि माइनस साइन cos एब्सॉर्ब कर लेता है. माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल टू 2 cos 2x इंटू cos x माइनस 3 cos 2x. ये क्लियर है? These steps are clear to everyone, the application of identity. So in the next step, sine 2x can be taken as common from both of them, and this will become 2 cos x minus 3, and here you can take cos 2x common from both of them, and this will become 2 cos x minus 3, right? ये रेस कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को. तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा? 2 cos x माइनस 3 जो है दोनों साइड से, ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल मत कर देना, पहले लेफ्ट में ले जाओ दोनों को. तो 2 cos x minus 3 can be taken as common, right? And sin 2x minus cos 2x is equal to 0. This will what remain. अब क्या है कि या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, लेकिन जो ये पहला वाला टर्म है ये 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि दिस विल बिकम, अगर हम इसको 0 लेते हैं तो इससे क्या मिलेगा? cos x is equal to 3/2, which is not possible. This is greater than 1. तो ये पॉसिबल नहीं है.
जो दूसरा है वो अगर 0 होता है तो sin 2x इज इक्वल टू cos 2x हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं cos को डिवाइड कर दें तो tan 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा, tan 2x इज इक्वल टू 1 मतलब tan पाई बाई 4। तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, so n pi plus pi by 4. So this implies x is equal to n pi by 2 plus pi by 8. So this would be your answer. That means the answer was correct which Arushi has sent. I think it is clear to everyone now. Yes. I want response from you all. Yes, sir. Okay, Ayushi. Others? Yes, sir. Okay, Aradhya, Devansh, Ashish, Kaustubh, Mansi. Yes, sir. It's clear. Clear, sir. Okay. Sir, done. Okay. So we have the next question with us. हाँ, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है. फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा satisfying both the equations tan theta is equal to -1 and cos theta is equal to 1 by √2. तो दो इक्वेशंस अलग अलग गिवन हैं और दोनों का कॉमन जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है. तो इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है? इफ यू अप्रोच, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड थीटा satisfying them in 0, 2 pi. एंड दूसरा स्टेप क्या करना है? पहले तो 0, 2 पाई में थीटा क्या आ सकता है? 2 pi is not included. 0, if you are including 0 then no need to include 2 pi. To find theta satisfying them in 0, 2 pi and then general solution जब लिखो तो उसको लिख दो 2n pi, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद प्लस थीटा कर दो, दैट इज इट्स जनरल सॉल्यूशन.
tan थीटा इज इक्वल टू -1 अगर देखते हो तो 0 और 2 पाई में -1 कब कब मिल सकता है, कोई बताएगा मुझे? tan थीटा -1 अगर आ रहा है, सबसे पहले माइनस में है तो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो सेकेंड पे होने के लिए हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/4। और अगर हम चाहते हैं, आरुषि का आंसर आ गया है, आई थिंक दैट इज करेक्ट, और फोर्थ में अगर चाहते हैं तो और क्या हो सकता है, टू पाई माइनस पाई/4, दैट मीन्स 3 पाई/4 और 7 पाई/4। और अगर हम tan थीटा cos थीटा को 1/√2 लेते हैं तो cos थीटा पॉजिटिव का किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, cos थीटा की जो पॉजिटिविटी हो सकती है, ये तो tan थीटा के बारे में था कि ये निगेटिव कहाँ होगा, cos थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। दैट मीन्स जब तुम थीटा को लोगे तो या तो पाई/4 ले सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर 2 पाई माइनस पाई/4 ले सकते हैं। सो यू गेट पाई/4 और 7 पाई/4। तो इफ यू सी हियर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, ये है tan थीटा इज इक्वल टू -1 के लिए 0 और 2 पाई में, और cos थीटा 1/√2 के लिए यू गेट पाई/4 और 7 पाई/4। तो कौन सी Yes. वैल्यू दोनों में है, दैट इज 7 पाई/4। सो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई जो दोनों में है वो है 7 पाई/4। तो इससे जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n पाई प्लस 7 पाई/4। सो दिस वुड बी फाइनली द आंसर। Yes, sir. Anyone having any doubt in any step, please ask. So we are done. Okay. So all possible type of questions which generally come in competitive exams, and some like the last one which we have done, they sometimes they ask in school exam in difficult questions. So we are discussing all type of possible questions here. Solve cos 3x plus cos 2x is equal to sine 3x/2 plus sine x/2, where x is between
0 and 2 pi. तो 0 से 2 पाई के बीच में ही हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, जनरल सॉल्यूशन नहीं बताना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, बता सकते हो आप? और राइट हैंड साइड में कौन सी लगा रहे हो? Sir, I'm just solving. ओके। तो लेफ्ट में लगाना है cos c प्लस cos d और राइट में लगाना है sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी। So let us apply the identity now. Cos 3x plus cos 2x will be 2 cos 3x plus 2x by 2, that will be 5x by 2 into cos 3x minus 2x by 2, that is x by 2. राइट हैंड साइड में क्या है, 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 अगर करेंगे तो 4x बाई 4 हो जाएगा विच इज x। कॉस ऑफ करेंगे तो x बाई 2 हो जाएगा। सो दिस वुड इम्प्लाई 2 दोनों साइड से कैंसिल किया हमने,
cos x/2 को कॉमन ले लिया तो cos 5x/2 माइनस sin x, ये हो जाएगा sin x हो या sin x/2 होगा, 2 sin c प्लस t/2। हाँ ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब अगर ये 0 है तो एक केस तो बनता है ये कि cos x/2 0 है। cos x/2 0 कब होता है, मतलब cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जो cos का ग्राफ है उसमें तुम आसानी से देख सकते हो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है, मतलब x/2 क्या होगा, 2n + 1 पाई बाई 2। So this 2 and Yes, 2 sir. will cancel and you will get x is equal to 2n + 1 pi. So the values between 0 to 2 pi which include this is x is equal to pi. तो पहले केस से तो x की वैल्यू पाई आ रही है। अब दूसरा केस भी देखते हैं, दूसरा केस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। एक तो वैल्यू पाई आनी चाहिए, दैट इज फ्रॉम केस 1। अब केस 2 देखते हैं। सो वी टॉक अबाउट केस 2, इसको अभी तुम कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो दिस वुड बी 0, इसका मतलब क्या हो गया, cos 5x/2 इज इक्वल टू sin x हो जाएगा। और sin x एक तरफ है, एक तरफ cos है, तो कैसे पता करें, तो इस साइन को चेंज कर दो cos ऑफ π/2 माइनस x, तो इन दोनों को अब कंपेयर किया जा सकता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा जो होगा, दैट विल गिव यू थीटा विच इज 5x/2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा विच इज π/2 माइनस x। तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर दो केस बनेगा, प्लस के लिए और माइनस के लिए। जब प्लस वाला लोगे और उसको कैलकुलेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2 माइनस x, इधर चला जाएगा। ये थोड़ा सा मैं मेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम भी कर लेना। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ प्लस के लिए, फिर करूँगा माइनस के लिए। तो प्लस के लिए जब कैलकुलेट तो प्लस π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। तो 7x/2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। एक तो ये मिल रहा है, और इससे हमें दूसरा माइनस वाला कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस π/2, और जो x का कोफिशिएंट हो जाएगा वो प्लस x, अगर इधर जाएगा तो माइनस x बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 3x/2। सो नेक्स्ट स्टेप में x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि दिस इज 1/7, 7 को डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n पाई प्लस पाई, एक तो ये बन रहा है। और दूसरा क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू 1/3 4n पाई माइनस पाई। अब इससे हम 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यूज पता कर सकते हैं। तो 0 और 2 पाई के जो बीच की वैल्यूज है मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ। तो जैसे n को अगर -1 पुट करते हो तो 0 और 2 पाई के बीच में नहीं होगा। अगर 0 पुट करते हो तो 5π/7 हो सकता है, नहीं 0 पुट करने पे π/7 हो सकता है, और 1 पुट करने पे 5π/7 हो सकता है। और अगर 2 पुट करते हैं तो 9π/7 हो जाएगा, और अगर 3 पुट करते हैं
अब ये 13 पाई/7 तक जा सकते हैं। 13 पाई/7, हाँ, इसके आगे नहीं ले सकते n की वैल्यू, क्योंकि लेंगे तो फिर 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो ये पहले से आया। दूसरे से क्या आ सकता है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 0 लोगे तो निगेटिव हो जा रहा है, प्लस अगर 1 लेते हो तो 3 पाई/3 दैट इज पाई आ रहा है, और अगर 2 लेते हो 7 पाई/3 हो जाएगा। 7 पाई/3 इज ग्रेटर देन 2 पाई। तो यहाँ से एक ही वैल्यू मिल रही है, दैट इज x इज इक्वल टू पाई, और यहाँ से 4 वैल्यूज मिल रही हैं। तो फाइनली इस वैल्यू को और एक ये वाली थी x इज इक्वल टू पाई केस 1 से। तो टोटल जो हमारे आंसर में वैल्यूज आ रही हैं वो 5 वैल्यूज आ रही हैं। व्हाट आर दोज वैल्यूज? फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो इनसे कि सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2 पाई आर एक्चुअली पाई/7 सबसे छोटा एंगल, उसके बाद 5 पाई/7, उसके बाद पाई, उसके बाद 9 पाई/7, और उसके बाद 13 पाई/7। ओके सर। Note this down and let us come to the next question. एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। सर नोटेड। ओके गुड। I'm searching for some other good question. I think we have covered almost all the possible cases which are important, which generally come in competitive exams or school exams. You can say that 20% of the questions which we have done is 20 to 30%, which are uh, useful for school exams, and rest of the questions, 70% around, is for competitive exams. ओके सर। Let us come to pure question of trigonometric function.
find the value of sine square pi by 8 plus sine square 3 pi by 8 plus sine square 5 pi by 8 plus sine square 7 pi by 8. So just try this, then we will discuss this one. Meanwhile, I am coming in 2 minutes. Yes, anyone having any answer for this? Oh, no one has replied. Sir, is it 2? Sorry, Arushi? Sir, is it 2? Yes, 2 is correct. So basically we have sine square pi by 8. So sine pi by 8 can be written as sine pi by 8, leave it as it is. Sine square 3 pi by 8, you can also leave it as it is.
sin square 7 pi by 8. This can be written as sin of pi minus pi by 8, right? 180 degree minus theta अगर करेंगे तो that will be sin of pi by 8 allied angle formula से. तो पहले 7 pi by 8 को pi minus pi by 8 लिखा और उसके बाद जो है ओके उसके बाद जो है allied angle formula लगा दिया. तो sin 180 degree minus theta is sin theta. So this value will become sin square pi by 8. अच्छा sin square जो 5 pi by 8 है उसको क्या लिखेंगे? sin 5 pi by 8 is equal to sin pi minus 3 pi by 8. So this is actually sin 3 pi by 8 allied angle से. तो ये हो गया sin स्क्वायर 3 pi by 8. अब जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास इसको जिसको हम कुछ भी a मान लेते हैं, a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा. अभी भी आंसर आया नहीं है तो एक बार और हम अलाइड एंगल फॉर्मूला लगाएंगे. वो कैसे लगाएंगे? साइन 3 पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8. कैलकुलेट करके तुम देख सकते हो इसका आंसर होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 को जब एलसीएम लोगे तो 8 होगा. 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई. साइन 90 माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस थीटा. ये cos pi by 8 हो जाएगा. So in the next step what you will do, a is equal to 2 times sin pi by 8 तो वैसे ही का वैसे ही है और sin 3 pi by 8 जो है यहाँ पे वो बन गया है cos pi by 8. ये हो जाएगा cos स्क्वायर pi by 8 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमें पता है 1 होता है तो 2 into 1 फाइनली 2 is your answer. Yes, sir. So we will conclude today's class now. Okay, sir. Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.